What's up, word warriors? Welcome back to the word meaning series, and today we are racing right into letter R, part 1. These words aren't just random. They rumble with power, ripple with emotion, and sometimes even retaliate. From restraint to rebellion, this set is rich, raw, and ridiculously impactful. So get ready, we are revving up the vocabulary engine. Let's roll into letter R and redefine how we use these words. The first is ramble, and this means to walk aimlessly or speak without clear direction. Ramble का मतलब होता है जब आप बिना किसी point of direction के या फिर बिना किसी destination के ऐसे ही घूम रहे हो इधर उधर, ठीक है? Aimlessly, you don't have any clarity कि आप क्या बोलना चाह रहे हो या फिर आप कहाँ जाना चाह रहे हो, ठीक है? It carries a sense of looseness and drift. It can be physical, which is walking without a fixed path, verbal, which is speaking without structure, and mental कि आपके जो thoughts है वो freely इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है? Sometimes messily, कुछ chronological order में नहीं हो रहा है, okay? A ramble isn't always negative. Sometimes it means freedom. Simple example is he began to ramble during the presentation and forgot his main point. Now we have ramify, and this means to branch out or spread into many parts. Ramify का मतलब होता है जब कोई चीज ब्रांच आउट हो जाए, ठीक है, उस स्प्रेड हो जाए या फिर उससे जो है और भी चीजें निकले, ठीक है. इट कम्स फ्रॉम द आइडियाज ऑफ ब्रांचेस ग्रोइंग फ्रॉम अ ट्री ट्रंक. It basically suggests consequences multiplying, ideas expanding, and effects spreading further than expected. It often implies complexity. Example, one small decision can ramify into many unexpected outcomes. कि एक चीज के रूट से बहुत सारी चीजें ब्रांच आउट हो सकती हैं, ठीक है. ये बेसिकली एक रिमाइंडर है कि एक चीज कंटेन्ड कभी नहीं रहती. Now we have rampant, and this describes something spreading quickly and uncontrollably. कोई ऐसी चीज है जो कि बहुत जल्दी and uncontrollably spread हो रही है, ठीक है, and it is often harmful. This word basically feels wild and unchecked क्योंकि of course वो control में नहीं है, so it's unchecked, right? It suggests lack of control, intensity, and something growing faster than it should. It's usually used negatively, जैसे कि rampant corruption हो गया, rampant rumors, rampant disease, कोई ऐसी चीज जो कि बहुत जल्दी फैल रही है. Example, rumors were rampant in the school after the incident. It's not just spreading, it's spreading without any kind of a restraint, ठीक है, कोई control नहीं है. Now we have Rancour, and this is a deep bitterness or long-lasting resentment. आपके मन में किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है, बिटरनेस है, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सोच के ही आपको बुरा लगता है या फिर कोई बुरी चीज याद आती है जो आपके साथ हुई हो, ठीक है. इट इज नॉट लाउड एंगर, इट्स एंगर दैट हैज बीन सेटल्ड, लेकिन इट स्टेड, ठीक है. एक चीज होती है फॉरगिव एंड फॉरगेट, कि कोई चीज है उसको आपने माफ किया एंड आप भूल गए, बट कोई एक चीज होती है कि यू लेट गो बट स्टिल वो आपके मन के अंदर होती है, ठीक है. इट सजेस्ट हर्ट दैट वॉज नेवर रिजॉल्व्ड, रिजेंटमेंट दैट क्वाइटली ग्रोज, एंड हॉस्टिलिटी दैट लिंगर्स बीनीथ द सरफेस. रैनकॉर इज कोल्ड, ठीक है. एग्जाम्पल, देयर वर क्लियर रैनकॉर बिटवीन द टू कोलीग्स आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट. एक ऐसी फीलिंग है जो कि इजिली फेड अवे नहीं हो रही, ठीक है. Now we have ransack, and this means to search a place thoroughly, often causing disorder. कि मतलब कोई किसी जगह को बहुत रफली एंड थरली छानबीन करना कहीं पे, ठीक है, कि पूरी जगह को उथल पुथल कर देना. नहीं फर्क पड़ रहा कि वो जगह जो है मेसी हो रही है या फिर उस जगह पे डैमेज पड़ रहा है, डिसऑर्डर में आ रही है, आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आप बहुत थरली चेक कर रहे हो, ठीक है. इट बेसिकली कैरीज वायलेंस एंड केओस. ये सजेस्ट करता है फोर्सफुल सर्चिंग, डिसऑर्डर left behind, and desperation or aggression. Example, thieves ransacked the house looking for valuables. Now we have ransom, and this is money paid to secure the release of someone or something. Basically, ransom जो होता है ना, it is money या फिर payment demanded in exchange for the release of someone or something. ये basically kidnapping के cases में बहुत ज़्यादा होता है कि आपको जो रैंसम कॉल आता है, विच इज द कॉल आस्किंग फॉर मनी, कि हमें इतना पैसा दो तो हम तुम्हारे इस करीबी को छोड़ेंगे, ठीक है. रैंसम इज अबाउट प्राइस फॉर फ्रीडम. इट सजेस्ट कैप्टिविटी, नेगोशिएशन अंडर प्रेशर, एंड समथिंग वैल्यूएबल बीइंग विदहेल्ड. रैंसम इम्प्लाइज कि रिलीज पॉसिबल है
लेकिन फ्री नहीं है, तुम्हें उसके बदले में कुछ देना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, द किडनैपर्स डिमांडेड अ रैंसम फॉर द हॉस्टेज। नाउ वी हैव Rapacious, and this describes someone greedy and eager to seize more than their share. ये वर्ड एक ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो कि एग्रेसिवली ग्रीडी है, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा एक्सेस में जो है किसी चीज को पाने की उसमें है, कोई ऐसी चीज जो उसकी हक की बनती भी नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग ही डिजर्व्स या फिर उसके हक में हो, बट वो पाना चाहता है बिकॉज ही इज दैट ग्रीडी, ठीक है। इट्स जस्ट हंगर विदाउट लिमिट्स, सिंपल डिजायर नहीं है, इट इज द डिजायर जो उस बंदे को भी कंज्यूम कर जाए कि दैट्स ऑल ही थिंक्स अबाउट ऑल द टाइम, ठीक है। इट इम्प्लाइज टेकिंग मोर देन नीडेड, नो कंसर्न फॉर फेयरनेस एंड ऑलमोस्ट प्रेडिटरी इंटेंसिटी, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल इज द कंपनी वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स rapacious pursuit of profit. Now we have rapture, and this is a feeling of intense joy or delight. बेसिकली बहुत खुशी वाली, इंटेंस जॉय, डिलाइट वाली फीलिंग है, ठीक है। ये एक ऐसा जॉय है दैट लिफ्ट्स यू आउट ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। इट लिफ्ट्स यू आउट ऑफ योर मिजरी। इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस, इमोशनल एलिवेशन एंड कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन अ मोमेंट, कि आप बस उस मोमेंट में खो गए हो, ठीक है। इट्स नॉट काम कंटेंटमेंट, एंड द रूट आइडिया इज टू बी कैरीड अवे. Example, she listened to the music in Rapture. Now we have rearing, and this means eager and ready for action. कोई ऐसा पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा ईगर है, एंथुजियास्टिक है, ठीक है। इट सजेस्ट रेस्टलेस रेडीनेस. इट इम्प्लाइज एनर्जी जो रिलीज होना चाह रही है, इम्पेशंस कि मेरे को जो है ये चीज शुरू करनी है, ठीक है, एंड एक्साइटमेंट मिक्सड विद अर्जेंसी. क्वाइट ईगरनेस नहीं है कि हाँ आप किसी चीज के लिए एंटिसिपेशन में बैठे हो कि हाँ ये चीज होगी. इट्स द ईगरनेस दैट एग्रेसिवली नॉक्स एट यू, ठीक है. इट्स लाइक कि हाँ भाई जल्दी से कोई चीज हो, मैं जल्दी से ये चीज कर पाऊँ, ठीक है. इट्स चार्ज्ड. एग्जाम्पल, ही वॉज रेयरिंग टू स्टार्ट हिज न्यू प्रोजेक्ट. Now we have ratify, and this means to formally approve or confirm something. Ratify का मतलब होता है जब आप किसी चीज को formally approve कर रहे हो, confirm कर रहे हो, ठीक है. It's about making something official and binding. It suggests authority, final agreement and turning intention into commitment. अगर कोई चीज ratify की जाती है, it basically means कि वो अब discussion से decision पे आ चुकी है, ठीक है. Example, the committee voted to ratify the new policy. Now we have ravage, and this means to cause severe damage or destruction. Ravage का मतलब होता है जब आप किसी जगह को या फिर किसी पर्सन को severely damage कर दो या फिर destroy कर दो, ठीक है. It suggests violent and sweeping harm. It implies force, intensity and damage जो कि एक visible aftermath छोड़ के जाए, ठीक है. Small harm नहीं है, it's a large scale pain. Example, the storm ravaged the coastal town. Now we have ravenous, and this means extremely hungry. This word basically means कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ठीक है, and it is a kind of a hunger that is urgent and consuming, कि बहुत तेज से भूख लग रही है, and that's all you can think about कि मैं जल्दी से कुछ खाऊं, ठीक है. It can describe physical hunger, strong desire and overwhelming craving. It's beyond simple hungry कि हाँ मेरे को भूख लग रही है but आधा पौना घंटा मैं रुक के कुछ खा लूँगा, it's okay. वो वाली चीज़ नहीं है. It's like you want something urgently, ठीक है. Example, after the long hike they were ravenous. Now we have rebate, and this is a partial refund given after payment. Rebate जो होता है partial refund है या फिर return है of money paid, ठीक है. It basically suggests giving back after the fact. It implies correction, adjustment and financial relief. Rebate जो है original payment नहीं है, ठीक है. It is basically a reduced amount and it carries a sense of compensation. Example, customers received a rebate after purchasing the product. Now we have rebuff, and this means to reject someone or something in an abrupt manner. Rebuff का मतलब होता है जब आप किसी चीज को blunt या फिर discouraging way में जो है reject कर दो, मना कर दो, ठीक है. It basically feels firm and slightly cold, ठीक है. It suggests dismissal, refusal without any kind of warmth and emotional distance, कि आप कुछ एम्पैथी के साथ किसी चीज को मना नहीं कर रहे हो कि या फिर कोई एक्सप्लेनेशन दे के नहीं, कि अगर किसी बंदे ने आपको कोई चीज प्रपोज करी है, ठीक है, कि हाउ अबाउट वी डू दिस प्रोजेक्ट इन दिस वे, एंड आप ये नहीं बोलते कि नहीं यार इसमें ना ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, एंड यू स्ट्रेट अप से नो एंड यू रिजेक्ट इट इमीडिएटली ऑन हिज फेस. सो इट इज अ लिटिल cruel way and it is a little
rude way of refusing something, ठीक है. Example, she rebuffed his request for help. Now we have rebuke and this means to express sharp disapproval. इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को लेके बहुत शार्पली डिसअप्रूव कर रहे हो किसी चीज़ को या फिर क्रिटिसिज्म शो कर रहे हो, ठीक है. इट कैरीज मॉरल अथॉरिटी. ये सजेस्ट करता है करेक्शन, रेप्रिमांड एंड पॉइंटिंग आउट द रॉन्ग डूइंग. रिब्यूक जो है क्रिटिसिज्म से स्ट्रॉन्ग है एंड इट कैरीज जजमेंट. एग्जाम्पल, द टीचर रिब्यूक द स्टूडेंट फॉर चीटिंग. Now we have recant and this means to withdraw a previously stated belief or statement. मतलब जो आपका कोई बिलीफ है या फिर आपने कोई स्टेटमेंट दी हुई है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मानते हो एंड यू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम इट एंड यू विदड्रॉ फ्रॉम दैट पॉइंट कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ठीक है. इट बेसिकली सजेस्ट पब्लिक रिवर्सल. इट इम्प्लाइज एडमिटिंग कि तुम गलत थे, रिट्रैक्टिंग समथिंग प्रीवियसली डिक्लेयर्ड एंड अपने वर्ड्स को अनडू करना, ठीक है. ये प्रेशर कैरी करता है फॉर एग्जाम्पल सोशल, पॉलिटिकल या फिर मॉरल. एंड रिकैंटिंग जो है क्वाइट नहीं है कि आपने चुपचाप बस अभी आप इस चीज़ में मानते थे अब आप इस चीज़ में नहीं मानते, नहीं. इट इज़ पब्लिकली एक्सेप्टिंग कि हाँ भाई आप पहले इस चीज़ में मानते थे एंड इट वॉज अ रॉन्ग थिंग एंड अब आप उस चीज़ को वापस लेते हो, ठीक है. एग्जाम्पल, द विटनेस लेटर रिकैंटेड हिज अर्लियर स्टेटमेंट. Now we have receptive and this means willing to listen to or accept new ideas. Receptive का मतलब होता है कि आप कोई नई चीज़ सुनना चाह रहे हो या फिर अगर कोई बंदा आपके पास आके कोई प्रपोजल लेकर आया तो यू आर विलिंग टू लिसन इट और एक्सेप्ट इट. चाहे आप उसमें कोई चेंजेस करो ना करो, दैट्स अ लेटर डिस्कशन, बट यू आर विलिंग कि हाँ भाई तू आके मेरे से ये चीज़ डिस्कस कर सकता है, ठीक है. इट सजेस्ट ओपननेस विदाउट रेजिस्टेंस. इट इम्प्लाइज रेडीनेस टू एब्जॉर्ब, एब्सेंस ऑफ डिफेंसिवनेस एंड मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी. एक रिसेप्टिव पर्सन जो है ऑटोमेटिकली एग्री नहीं कर जाता या फिर एक्सेप्ट नहीं कर लेता, ठीक है. वो एक स्पेस अलाउ करते हैं कि हाँ भाई तुम आके हमसे एटलीस्ट बात तो करो, उसके बाद क्या करना वो हम देख लेंगे, ठीक है. एग्जाम्पल, शी वॉज रिसेप्टिव टू फीडबैक अबाउट हर वर्क. Now we have reckon and this means to calculate or consider something carefully. रेकन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को कंसिडर करते हो, सपोज करते हो या फिर कैलकुलेट करते हो, किसी चीज़ को लेके बारे में सोचते हो, ठीक है. इट हैज़ अ टोन ऑफ मेजर्ड जजमेंट. स्ट्रैटेजिकली आप कोई इसी चीज़ को सोच रहे हो कि हाँ अगर ये चीज़ है तो इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है. इट सजेस्ट थिंकिंग समथिंग थरली, फॉर्मिंग अ कंक्लूजन एंड वेइंग द पॉसिबिलिटीज. इट्स लेस फॉर्मल दैन कंक्लूड. एग्जाम्पल, आई रेकन इट विल टेक अबाउट एन आवर टू फिनिश. कि मतलब कोई चीज जो कि आप सोच समझ के बोल रहे हो, ठीक है. Now we have recluse and this is a person who lives in isolation while recursive describes someone who avoids social interaction. Recluse का बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आइसोलेशन में रहता है, अकेले रहता है या फिर सोशल कॉन्टैक्ट अवॉइड करता है, ठीक है. इट सजेस्ट चोजन विड्रॉल. ये इम्प्लाई करता है सोसाइटी से स्टेप अवे करना, ठीक है. अपना सॉल्टिट्यूड, अकेलेपन को वैल्यू करना, ठीक है. एंड डिस्टेंसिंग वन सेल्फ फ्रॉम नॉइस और एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है. रिक्लूज जो है ये नहीं है कि तुम सिर्फ अकेले हो, वो दे रिमेन अपार्ट, ठीक है. एंड देयर इज ऑफन इंटेंशन इन द वर्ड. एग्जाम्पल, आफ्टर रिटायरिंग ही बिकेम अ रिक्लूज एंड रेयरली लेफ्ट हिज हाउस. Now we have reconcile and this means to restore friendly relations after disagreement. रिकनसाइल का मतलब होता है कि आपका सपोजिटली आपके किसी फ्रेंड के साथ या फिर समवन हु इज वेरी क्लोज टू यू, आपका उनके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ अपॉन समथिंग, ठीक है. तो आप उस चीज को, आर्ग्यूमेंट को भूल के यू मूव ऑन, ठीक है. एंड यू रिस्टोर दोज फ्रेंडली रिलेशंस विद देम, ठीक है. इट इज अबाउट मेकिंग पीस आफ्टर conflict. It implies resolving differences, accepting something difficult and restoring balance. रिकन्सिलेशन जो है पास्ट को इरेज नहीं करता, इट एडजस्ट टू इट. कि आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ ये चीज़ हुई थी एंड यू एडजस्ट कि हाँ चलो ठीक है ये हुआ, अब इसको जाने देते हैं. एग्जाम्पल, द टू फ्रेंड्स रिकन्साइल्ड आफ्टर देयर डिसएग्रीमेंट. Now we have recoup and this means to discover losses or regain something spent. Recoup का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ जो कि जा चुकी थी, लॉस्ट हो गई थी या फिर कम हो गई थी, उसको आप रिकवर कर रहे हो, ठीक है. स्पेशली मनी और स्ट्रेंथ. इट बेसिकली मीन्स कि आप किसी सेटबैक के बाद रीगेन कर रहे हो. इट इम्प्लाइज रिस्टोरेशन, एफर्ट टू रिकवर एंड रिबिल्डिंग व्हाट वाज डिमिनिश्ड. ये
फुल रिटर्न प्रॉमिस नहीं करता कि जितनी चीज खोई थी उतना ही वापस आ गया, बट एटलीस्ट जो आप 100 से 30 पे आए थे उस पे आप 60 पे आ पाए हो, ठीक है. दैट्स व्हाट रिकूप इज. एग्जाम्पल, द कंपनी वर्कड हार्ड टू रिकूप इट्स लॉसेस. Now we have recourse, and this is a source of help in a difficult situation. Recourse का मतलब होता है it is basically a source of help or a way to seek remedy after a difficult or a critical situation. ठीक है, it is basically about having someone or somewhere जहाँ पे आप turn up कर सकते हो जब चीज़ें जो हैं they go wrong. ठीक है, it implies backup, appeal and protection. एक ऐसा available option difficulty के times में. If you have recourse, you are not powerless, because of course किसी difficult situation में you can go to that person or you can go to that place. It is often used in legal or formal context. Example, if the product is defective, customers have legal recourse. Now we have rectitude, and this means moral correctness or integrity. रेक्टिट्यूड का मतलब होता है कि आप जो है मॉरली बहुत ज़्यादा करेक्ट रहते हो या फिर अपराइट रहते हो. इट सजेस्ट स्ट्रिक्ट मॉरल इंटेग्रिटी. आपका जो है प्रिंसिपल्ड बिहेवियर है, अनवेवरिंग ऑनेस्टी आपके अंदर, एंड आप वही चीज़ करते हो जो कि सही चीज़ हो. ठीक है, इवन इफ इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, इवन इफ कोई सिचुएशन है जहाँ पे इट इज़ नॉट ईजी टू एडमिट व्हाट इज़ द राइट थिंग, ठीक है, बट यू स्टिल डू इट बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ अ मॉरल करेक्टनेस इन यू. ठीक है, इट कैन फील एडमिरेबल और रिजिड डिपेंडिंग अपॉन टोन. एग्जाम्पल, शी वॉज नोन फॉर हर मॉरल रेक्टिट्यूड. Now we have recumbent, and this means lying down or resting in a reclining position. Recumbent का मतलब होता है जब आप लेट जाते हो या फिर रिक्लाइन करते हो, ठीक है, या फिर रिक्लाइनिंग पोजिशन में रेस्ट कर रहे हो. ठीक है, इट बेसिकली सजेस्ट कि जो आपकी बॉडी है वो फ्लैट पोजिशनड है या फिर पीछे लीन कर रही है. इट इज ऑफन यूज्ड इन मेडिकल कॉन्टेक्स्ट, इन डिस्क्रिप्शंस ऑफ पोस्चर्स एंड इन टेक्निकल लैंग्वेज. एग्जाम्पल, द पेशेंट रिमेन्ड इन अ रिकम्बेंट पोजिशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. Now we have redemption, and this is the act of being saved or forgiven for wrongdoing. Redemption का मतलब होता है कि आपके किसी wrongdoing, किसी error के लिए या फिर loss के लिए आप जो है उस चीज़ से बचाया जा रहा है या फिर आपको उस चीज़ के लिए माफ़ किया जा रहा है. ठीक है, it is about restoration after failure. It implies atonement, recovery of worth and making up for past mistakes. And आप इससे जो अपनी dignity reclaim कर रहे हो कि although you did something wrong in the past but you're making up for it now, and लोग उस चीज़ को देखते हैं कि हाँ चलो क्योंकि इंसान है गलती हो जाती है, but the fact that you are not stepping back from it or refusing, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस चीज़ के लिए उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हो, that's what redemption is. ठीक है, example, the final victory felt like redemption after their early defeat. Now we have reek, and this means to emit a strong unpleasant smell. रीक का मतलब होता है जब किसी चीज़ से बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लेजेंट सी स्मेल आए. ठीक है, कुछ मतलब ओवरवेलमिंग एंड अनअवॉइडेबल अडोर, कि मतलब आप चाह के भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहे. इट इम्प्लाइज इंटेंसिटी, हैवीनेस एंड समथिंग दैट फिल्स द एयर. कि किसी सपोजिटली आप किसी रूम में जाओ जहाँ पे पुराने कपड़ों का बैग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, लाइक बहुत पुराने कपड़े या फिर स्टेल खाना पड़ा हुआ है, तो दैट रूम वुड बी फुल ऑफ दैट ओडोर, बैड ओडोर. ओके, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड मेटाफोरिकली टू सजेस्ट समथिंग स्ट्रांगली सजेस्ट अ नेगेटिव क्वालिटी. मतलब आप किसी चीज़ की नेगेटिव क्वालिटी को हाईलाइट करने के लिए भी ये वर्ड जो है यूज कर सकते हो. ठीक है, एग्जाम्पल, द रूम रीक्ड ऑफ स्मोक. नाउ वी हैव रीगल, एंड दिस डिस्क्राइब समवन हु लुक्स रॉयल एंड डिग्निफाइड. कोई ऐसा पर्सन जो कि रॉयल लगे, सूटेबल फॉर अ किंग और अ क्वीन, डिग्निफाइड लगे. ठीक है, नेचुरल डिग्निटी एंड अथॉरिटी उस पर्सन में. इट इम्प्लाइज पॉइज, ग्रैंड्योर एंड कमांडिंग प्रेजेंस. ये सिर्फ क्राउन्स के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट देयर पर्सनैलिटी एंड हाउ दे कैरी देमसेल्व्स. एग्जाम्पल, शी वॉक्ड इनटू द रूम विद अ रीगल पोस्चर. Now we have regress, and this means to return to a less advanced state. Regress का मतलब होता है जब आप किसी अच्छी पोजीशन से थोड़ी सी उसके नीचे पोजीशन पे आओ. ठीक है, टू अ प्रीवियस और लेस एडवांस स्टेट. इट बेसिकली सजेस्ट बैकवर्ड मोमेंट आफ्टर प्रोग्रेस. इट इम्प्लाइज डिक्लाइन, स्लिपिंग इन टू एन अर्लियर कंडीशन, रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, एग्जाम्पल, विदाउट प्रैक्टिस हिज स्किल्स बिगेन टू रिग्रेस.
Now we have reimburse, and this means to repay money that someone has spent. रीइम्बर्स का मतलब होता है बेसिकली रीपेमेंट, ठीक है, कि आपने जो है पैसा खर्च किया था किसी का किसी टाइम पे, अब आप उसको पे कर रहे हो, ठीक है. It is about restoring financial balance. It implies repayment, compensation, or correcting an expense. Unlike a gift, reimbursement restores fairness. Example, the company will reimburse employees for travel expenses. Now we have relegate, and this means to assign someone to a lower position or rank. Relegate का मतलब होता है जब आप किसी को उसकी पोजीशन जो है उससे लोअर रैंक में या फिर लोअर पोजीशन में असाइन करो उसको. इट बेसिकली सजेस्ट पुशिंग समथिंग असाइड और डाउनवर्ड. इट इम्प्लाइज डिमोशन, dismissal to the background, reducing importance. Example, he was relegated to a minor role on the team. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused, practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam-oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept-building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student-friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam-level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated. Thank you.